My name is Kafil Ahmed, and I am here with my two group members, Mohammad Asad and Hamza Ashik. The topic and the project title of our final year project is Efficient Atmospheric Water Generator. For that purpose, I will welcome all the faculty members here for the SDP1 presentation, and our project advisor is Sir Syed Safiuddin Qadri. I would like to introduce first what our project is and why we have chosen this project as our SDP or as our FYP. As we all know very well that nowadays clean drinking water is scarce, getting scarce day by day. Or it is very important that we take immediate measures to conserve it. This project aims to design a clean water production unit. Therefore, in this project, we will condense the humid air and collect water in the form of water vapors, or that will be drinkable water. That water will be drinkable. For this purpose, we are using a filtration plant at the end that is known as filter plant, or we can simply call it a filter that can filter up to 10,000 ml of water. Secondly, the aim and objective of this project was to naturally generate water from the atmosphere, as we expect the generation of water around 250 ml or 300 ml from a single peltier. We are making it efficient, so we are using four peltiers to yield maximum water from the atmosphere. Right now, around us, as we are living in the coastal area, humidity is up to 70% in our air, so we can generate maximum amount of water, or we can ideally use this project here to conserve the water, or to fulfill our needs. The maximum efficiency, the maximum amount of water that is present in our uh, atmosphere is around 300 million billion bottles of water, so we can conserve it. After the completion of this project, we are expected to generate 250 ml of water in around 2 hours, or we can increase the efficiency by increasing the number of filters, as I mentioned it before, and it will cost around 15,000 to 20,000 rupees. Uh, this project is user friendly, and the safety is ensured, as the person who has no technical knowledge or limited technical knowledge can easily use it. He just has to turn on the switch, as we get water from the dispenser, and he can easily use it. The main motivation was that right now in Karachi, or in Pakistan particularly, is a state that is facing the scarcity of water, as it is a global problem that pure water is not available in the world. And as we say that pure water is the world's first and the foremost medicine. So around the globe, there are many countries, included Pakistan, that is facing water shortage. As well as in rural areas, urban areas are facing these problems too. As the biggest city of Pakistan, Karachi, is facing this problem, we are facing it in our homes and in our areas every day. Even though the elite class that is residing in the defense areas or DHA areas, they are using water tankers to fulfill their needs. Or if we need to ensure drinkable water for us, we need to dug wells, or we need to do boring. For that purpose, we have to dug around 400 or 450 feet. That cost around 250 lakhs or 300 lakhs approximately. Right now in the air, there are 38 million billions of gallon of water available that we can condense or use it for our purpose. It is cost effective and low power consuming, so it is really appreciable that we can make this project as our SDP. So after making this project, we will be providing a solution for the water scarcity for our city. It is feasible because every single individual that do not have technical knowledge can easily use it, or it is portable. That means if you are going from one place to another, you can just carry it with you. It is affordable. A person with average lifestyle can afford it easily. Around 15 to 20,000 is not a big deal for the average person residing in the big cities. The water that will be generated by this is drinkable, and we don't have to purify it, or we don't have to boil it, as we use purifiers or boilers in our homes, and then we cool it down. Or it is user friendly, so every person can use it. Now, further from here, I will like Mr. Asad to take the presentation above, and he will guide you about the technicalities of the project. Please, Mr. Asad, carry on from here.
Thank you, Kapil. Can anyone hear me? Can you hear me? थोड़ा सा और जोर से बोलो. Okay. Thank you, Kapil, for giving me the chance to describe our project. And now I would like to describe the working of Peltier device. Actually, Peltier device is an array of alternating P and N-type semiconductor devices. And the connection are such that they are electrically connected in series and thermally connected in parallel. And there is a metallic strip between the semiconductors, and we applied voltage on this semiconductor device. They create a temperature difference that will make the one side hotter and the other side very colder. We make it by using the we make it by creating a dew point, which will be discussed in the next slide. Here is the internal structure of the Peltier device. We can see that there are many couples of P and N-type semiconductor devices which are sandwiched between the ceramic substrate. And we can see that the upper side of the internal structure of the Peltier device, which is given on the screen. Upper side is absorbed, which makes it colder side, and the heat which is rejected make it hotter side. And on the right side of the working of the Peltier device, you can see that the electrical connection, when and voltage applied across the connection, the heat flows. And here is the heat sinks, which is the main part of our project. When we apply DC voltage, it creates a temperature difference, and heat sinks are used to make it cooler, because if we don't use heat sinks, it will burn out the Peltier device within seconds. Now we are using Peltier device, which is spec 112708, and the specification of the Peltier devices are given as the dimensions are 40 by 40, 3.5 millimeter, and color will be white or black, and the maximum power consumption is around 90. It can be minimum according to the rating we are using. The maximum voltage we can give to a Peltier device is 15 voltage, and the maximum current rating is around 8 ampere. And the minimum required temperature to run this device is 25, and the maximum temperature is around 70. So we can see the connections. Positive shows the red line shows the positive, and the black line shows the negative terminal of the Peltier device that we will use in our project. Now, advantage of Peltier device according to over traditional devices. We are comparing here traditional devices like refrigeration and other devices with Peltier. Actually, Peltier is small in size. It is flexible in shape. It is easily available in the market if we need any kind of Peltier device. But if we talk about the efficiency, then it is very hard to find the Peltier device having efficiency more than normal Peltier device. They are environmental friendly. We know that in refrigeration and other traditional devices, gases like neon gases and other gases are used, which makes environment, which affect the environment. On the other side, they can be used in extreme conditions, and the controlling of Peltier devices easily than the traditional devices. Similarly, they use low power consumption. The refrigeration and other traditional devices use more power than the Peltier devices. They are soundless. We can use it without any sound. Similarly, the other quality of Peltier device is that in case of temperature, if we provide them temperature, they generate electric power against the temperature. Similarly, they are small in size and low cost, so the maintenance of these devices are easier than the traditional devices. Now I would like to define the dew point and relative humidity. Dew point is actually the temperature at which the water, the vapor in the air starts to condense, such that after below dew point, we will exactly creating dew point below then to make it condense, and it will be form in the in water droplets. Similarly, relative humidity is the ratio between the partial pressure of the air atmosphere to the pressure of at a given temperature. Now here is a graph between the temperature and dew point and relative humidity. For example, if the temperature of air right now is 30 degrees centigrade, so according to relative humidity, that will be given by our sensor. If we compare it, then the dew point will be around 26 degrees centigrade. So that according to the relation between relative humidity and air temperature, we can find at 30 degrees centigrade, the dew point will be 26. That means at this dew point, we will start condensing the air
water vapor, and it will form in the it will be created in the form of water vapor. Now here is the block diagram of our project, roughly block diagram. Actually, here is the DTH11 sensor, which find out the relative humidity, and we will set the dew point according to the humidity, and after that we can see the Arduino Nano controller. It will be given to the Arduino Nano controller, and after that it will switch the MOSFET, which will further switch the Peltier device as it works. And after creating the water droplets by maintaining the dew point, it will be conserved in the water tank as given in the diagram. And we have put the LM35 sensor in the feedback that will measure the cold side temperature of the Peltier device, and the reading will be given to the controller Arduino Nano, and it will control the project such that it is actually a closed loop block diagram. As I told before, that heat sinks are used for the hot side of the Peltier device, as if we don't use heat sinks, it will burn out the Peltier device within seconds. So these are the actually exchanger of heat which are necessary to use it. Now I would like Hamza Ashik to continue the presentation from thermal phase. Thank you. Assalamu alaikum. I'm Hamza Ashik. Thank you, Muhammad Asad, to let me continue the presentation. Thermal paste is very heat conductive paste that is used between two objects, usually a heat sink or a peltier, to get better heat conduction. The job of the thermal glue is to fill in the crevices and take into the concentration better exchange of heat from the hot side of the peltier to heat sink. So thermal paste is between hot side of the peltier plate and heat sink is used. Next. Brushless DC fan. 12 volt 0.16 ampere DC fans will be used in the project. Fans will be attached along with each heat sink to extract heat. The best thing is that they consume very low power. Next. Arduino Nano is a microcontroller based on ATmega 328P. It was developed by Arduino CC. It has the same function as that of Arduino UNO or Arduino Mega, with the advantage of being small in size. It has an operating voltage of 5 volt. It has 14 digital pins, 8 analog pins, 2 reset pins, and 6 pins. Move forward further. IRF. Next. Next. Filter. Show me the filter. Okay. Move forward. Next. Okay. Do you have any other thing to say other than these slides? No. Please come to the first slide. Thank you. Next slide पे आएंगे. आपने ये कहा कि you are generating this atmospheric water generator to it is cost effective. ऐसा ही कह रहे हैं आप? Is this your claim? Yes, ma'am. What I can see is this is a most costly method of extracting the water from the atmosphere, isn't it or not? It may cost usually a cheapest one may cost 30 lakhs, nearly 3 lakhs or more than that. My research says so. आपने कहीं भी इसकी price और feasibility का नहीं बताया. Ma'am, you are not audible enough. Can you hear me now? Yes, ma'am. A bit clear.
ओके सबसे पहले तो आप मुझे बताइए कि आपने कहा कि योर सिस्टम इज कॉस्ट इफेक्टिव एंड दैट इज व्हाई यू आर प्रेफरिंग इट ओवर द बोरिंग और डगिंग द कैनाल एंड सो ऑन ठीक बट Yes, व्हाट आई ma'am. कैन सी इज दिस सिस्टम इज इक्वली कॉस्ट इफेक्टिव ये बहुत ज्यादा कॉस्टली है पहली बात और दूसरी बात ये कि इट नीड्स अ लॉट ऑफ एनर्जी कंजप्शन फॉर एक्सट्रैक्टिंग मैक्सिमम एनर्जी मैक्सिमम वाटर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर इज दैट और नॉट Ma'am, we are using just a 30 ampere 12 volt supply for this. तो पावर कंजप्शन तो उसकी ये हुई और बाकी सिलसिला ये है कि अगर देखा जाए एज कम्पेयर टू द डगिंग और वेल डगिंग और बोरिंग तो वो अप्रोक्सीमेटली 3 lakhs 2.5 lakhs तक चले ही जाते हैं। तो ये है कि अगर उस हिसाब से देखा जाए और अगर हम 4 पे टायर्स को यूज करते हुए बना रहे हो तो 15,000 इज अ कॉस्ट जिसमें हम तकरीबन 2 लीटर या 3 लीटर पानी जनरेट कर सकते हैं विद इन तो आप 3 hours समझे और ना 4 कि hours। वर्किंग वाइज दे आर बोथ डिफरेंट बोरिंग से जो वाटर आप एक्सट्रैक्ट करेंगे और 15,000 में यहाँ से जो आप वाटर एक्सट्रैक्ट करेंगे दे आर वे डिफरेंट कंजप्शन भी तो मुख्तलिफ है तो आप कॉस्ट की बेसिस पे तो इससे कंपेयर नहीं कर सकते मैम लेकिन ये पहली बात ड्रिंकेबल भी तो है, मतलब प्योरीफाई होकर वाटर मिलता है और ये है कि हमें अगर वो बोरिंग का जो वाटर है उसके लिए फिल्टर्स भी बट यूज वाटर करने पड़ते हैं या प्योरिफिकेशन इज हमारे। नॉट अ बिग डील एट ऑल दीज डेज we have very cheap water purifier available that can easily do the purpose serve the purpose या इट कैन बी। okay मेरा नेक्स्ट मैम क्वेश्चन है आपसे हमारी जो रिसर्च है उसके मुताबिक जो है हम लोग ये लो पावर कंजम्पशन के ऊपर ही बना रहे हैं। अराउंड 360 वॉट जो है वो 4 पेल्टियर के ऊपर जो है बिल्कुल हमारी आप आएगी I agree to पावर। you you are right that I agree to you. You are right that you are making it over low power consumption. But what I am saying is the parameter you are comparing it is not way. ठीक है आप जिस चीज के साथ इसे कंपेयर कर रहे हैं उसका कोई कंपैरिजन है ही नहीं. You cannot compare apple and oranges in taste. And we are comparing it with the traditional devices that we could have made this project by refrigeration process, but according to आप सही कह रहे हैं our आप research, इसको ट्रेडिशनल ठीक है आप इसको ट्रेडिशनल अवेलेबल फैसिलिटीज के साथ कंपेयर कर सकते हैं लेकिन जब आपने इनिशियल प्रेजेंटेशन स्टार्ट की और अपनी प्रोजेक्ट की फीजिबिलिटी को एक्सप्लेन किया तो आपने ये कहा कि बोरिंग एंड डिगिंग द कैनाल्स आर द एक्सपेंसिव सॉल्यूशंस yes तो ma'am, मैं आपसे ये कह रही मैं आई एम इनवैलिडेटिंग योर दिस पॉइंट ऑफ व्यू मैम बोरिंग की बात हमने इस वजह से करी है कि फॉर एग्जांपल अब आगे जब बाय 2025 जो है बोरिंग वगैरह जो है अभी जो है अराउंड 300 फीट जो है वो नॉर्मल है जिसमें हमें बोरिंग का पानी मिलता है, वो भी खारा पानी होता है, मीठा पानी नहीं होता। पहली बात तो ये हो गई और दूसरी बात ये 2025 तक जो है बट इट डू नॉट टेक 2025 एनी एनर्जी ना इसमें एनर्जी कंजप्शन तो बिल्कुल ही नहीं है ये तो मैम बिल्कुल आगे पैसिव वे ऑफ गेटिंग द वाटर है with a cheap purifier you can have a pure water for drinking that too converted into a sweet water is that or not soft मैम water में भी convert कर सकते हैं आप इसको मैम मैम प्योरीफायर तो तब लगाएंगे ना हमारा पानी होगा। फॉर एग्जाम्पल अब 2025 तक जो है पानी बोरिंग वगैरह से भी नहीं मिलेगा, तो जब पानी नहीं मिलेगा तो प्योरीफायर का तो कोई फायदा नहीं होगा। हमें असल में वाटर जनरेशन करनी है 36 बिलियन ट्रिलियन जो है गैलन पानी जो है वो हवा के अंदर है, तो हम उससे जो है जनरेट करें आगे जाके। तो ये बोरिंग और जमीन वगैरह से पानी नहीं नहीं फिर मिला अगेन 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 योर पॉइंट इज वेरी कॉन्ट्राडिक्टेड अब आप ये कह रहे हैं कि आपको 36 बिलियन ट्रिलियन वाटर एक्सट्रैक्ट करना है विद अ लो विद सच लो कंजप्शन ऑफ एनर्जी इट विल कंटेन वेरी वेरी मैसिव कंजप्शन ऑफ एनर्जी योर रिसर्च वर्क इज नॉट प्रॉपर मैम जैसे जैसे आप रिसर्च अभी आगे आप यू कैन बढ़ेगी गूगल इट राइट नाउ मैम हमने जो रिसर्च करी आगे जाके पावर कंजम्पशन पावर जो है वो इतनी मैटर नहीं करेगी आगे, इतनी ज्यादा रिन्यूएबल एनर्जीज जो है जिसको सोर्सेज आ गई हैं कि हम लोग एनर्जी तो क्रिएट कर सकते हैं लेकिन पानी किसी भी जो है सोर्स से so हम do लोग you know क्रिएट नहीं so कर सकते। nahi this is again not true it's not again true not true harvesting maximum amount of energy from renewable sources is again a task and still active research is going through all these phases आप ये नहीं मैम कह सकते कि रिन्यूएबल एनर्जी से एनर्जी एक्सट्रैक्ट करना फ्रॉम द रिन्यूएबल सोर्सेज लाइक विंड एंड सोलर इज एन इजी टास्क इट कंटेन्स अ lot of maintenance initial cost also so it's not easy मैम also tracking maximum power under different and partial shading condition is another huge topic to be discussed about मैम चले ये डिस्कस करने के लिए, लेकिन जो पावर कंजम्पशन है पावर के बगैर हम लोग जिंदा रह सकते हैं। अगर थोड़ी पावर भी हम लोग जिंदा रह लेंगे, लेकिन पानी जो है वो हमारी yes जो है सबसे बड़ी नीड है। अगर पानी नहीं होगा तो पावर का तो कोई फायदा नहीं है। तो हम my point is without even without power you cannot your system cannot work ठीक है बिल्कुल नेक्स्ट नहीं क्वेश्चन करेगा। में आते हैं बिल्कुल तो यही तो मैं कह रही हूँ तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि पावर के बगैर हम जिंदा रह सकते हैं ओके नाउ टेल मी मैम सोलर पावर वगैरह जो है how काफी can हम we लोग improve okay okay जी okay जी let's जी come to the next question how can we improve the efficiency of the peltier device मैम एक तो हीट सिंक अगर हम बड़ी लगाएंगे तो हॉट साइड जो है उसकी हम हीट एक्सचेंज के जरिए निकाल देंगे हीट। उससे ये होगा कि हमारा पल्टियर वगैरह जो है जल्दी गर्म नहीं होगा और दूसरी साइड पे कोल्डनेस जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएट रहेगी जिसकी वजह से जो
हम ड्यू पॉइंट के जरिए ज्यादा इज से दिस ज्यादा द ड्रॉपलेट। ओनली वे? मैम अदर है, हम लोग जो है फैन लगा सकते हैं हीट वगैरह के लिए, पल्टियर की तादाद बढ़ा सकते हैं जिससे जो हमारी एफिशिएंसी वगैरह बढ़ेगी। इसके अलावा इसमें बहुत सारी चीजें, इस तरह कोल्ड साइड पे अक्सर हीट आती है तो थोड़ा बहुत जो पानी हमने जनरेट करा होता है उसमें से एवापोरेशन वगैरह की वजह से भी जो है निकल जाते हैं, तो हम इसको भी ओवरकम कर सकते हैं कई पॉइंट से। इसी तरह कोल्ड साइड पे हमारा पिन टाइप जो है पिन लगा सकते हैं, इसकी वजह से जो ड्रॉप अच्छा, जो है अब मुझे डायरेक्ट ये जो है बताइए, वाटर थैंक यू टैंक। थैंक यू थैंक यू, हाउ डू यू कंट्रोल पेल्टियर टेम्परेचर? हम टेम्परेचर कैसे कंट्रोल करते हैं? हम कंट्रोलर के थ्रू करेंगे ना, मैं आप LM35। कंट्रोलर जी के जी थ्रू कैसे? मैम PID कंट्रोलर वगैरह जो हम लोग लाएंगे इसके लिए। बेटा पीआईडी कंट्रोलर वगैरह की क्या जरूरत है? पहले तो आप सेंसर पे आ जाए ना। जी जी सेंसर व्हाट काइंड ऑफ सेंसर सेंसर डू वी यूज? बताया LM35 सेंसर टेम्परेचर वगैरह के लिए हम यूज करेंगे। टेम्परेचर वगैरह के लिए LM35 और क्या टेम्परेचर कर सकता है टेम्परेचर के अलावा? टेम्परेचर नोट टेम्परेचर करके के लिए ऑडियो को देगा। तो टेम्परेचर फिर जो है, टेम्परेचर वगैरह क्या होता है? सॉरी मैम, LM35 कैन ओनली कंट्रोल द टेम्परेचर ना? ये यस यस मैम। इट कैन ओनली कंट्रोल Then द what is टेम्परेचर। done? Okay, once we have sensed the temperature, what is next? देन वी विल कंट्रोल इट बाय यूजिंग अ कंट्रोलर टू मेंटेन द ड्यू पॉइंट Which वंस type of वी controller do we need for this? आइदर वी कैन यूज इट ऑन एंड ऑफ कंट्रोलर और PID कंट्रोलर बोथ। On and off controller की कोई एग्जांपल दे सकते हैं आप? ऑन एंड ऑफ कंट्रोलर इज यूजुअली यूज्ड फॉर टेम्परेचर मेंटेनेंस। फॉर एग्जांपल अगर मेरा मैं डिवाइस को ऑन कराना चाह रहा हूँ Any 38 से controller that can serve the on and off purpose. P कंट्रोलर Sorry, P कंट्रोलर P controller can do on and off. यस अच्छा, रिले बेस्ड कंट्रोलर्स नहीं चाहिए होंगे हमें इसके लिए मैम टू वर्क रिले एफिशिएंटली? बेस्ड कंट्रोलर्स भी हो गए या कोई भी सिंपल फॉर्म ऑफ फीडबैक कंट्रोलर हो गए तो उनको ऑन एंड ऑफ कंट्रोलर के तौर पे यूज किया जा सकता है। अच्छा, so what are the disadvantages of peltiers? हम इसके डिसएडवांटेज शायद आपने निकलवा दी था, सुने नहीं थे ये इधर एग्जैक्टली इसके आप मुझे हमने आप बता स्लाइड दें, आप के ऐसे ही इस बता दें, लीव द स्लाइड। जी जी इनकी आवाज आ रही है मैम? कैन यू हियर मी? जी जी प्लीज, जी मैं आपको सुन सकती हूँ। मैम डिसएडवांटेजेस इसके जो हैं वो ये हैं कि फल्टियर में एक तो हमें हीट सिंक्स वगैरह बड़ी साइज की यूज करनी पड़ती है, सही है, जिसकी वजह से जो बेटा है ये कोई जो अवेलेबल नहीं है। डिसएडवांटेज और का वर्किंग मैकेनिज्म है। मैम इसके अलावा मैंने आपको पीछे भी इसके डिसएडवांटेज बताए कि कुछ जो है वाटर जो जनरेट कर रहा होता है कोल्ड साइड के ऊपर, जो वाटर जनरेट करते हैं वो एवापोरेशन की वजह से उड़ जाते हैं, हीट क्योंकि इतनी ज़्यादा होती है। छोटा है डिवाइस, इसकी एक साइड कोल्ड होती है और एक साइड हॉट होती है, तो थोड़ा सा इफेक्ट करती है। इसकी वजह से जो पानी हम लोग जो है कंजर्व कर रहे होते हैं वो अक्सर जो है थोड़ा सा एवापोरेट ऐसा कर तो जाता नहीं है, ऐसा नहीं है। इसका मेजर मैम। डिसएडवांटेज ये नहीं होता कि इट इटसेल्फ जनरेट अ लॉट ऑफ हीट यस मैम, दैट्स व्हाई वी करंट आर की यूजिंग वजह से। हीट सिंक। आप जो वो सेमीकंडक्टर वाली आपकी जो फिगर थी वापस उस पे आएंगे? यस, यहाँ से मुझे बताइए इसका डिसएडवांटेज, मेजर डिसएडवांटेज क्या है इसका? मैम एक सबसे बड़ा मेजर डिसएडवांटेज तो ये है कि जो पेल्टायर है ना इसके लिए एक इनएफिशिएंट है। ये तो वजह ये है कि जब हम इसमें से करंट फ्लो करते हैं ना तो वो बहुत ज्यादा हीट जनरेट करता है, यानी सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ आपने हीट इसकी जनरेट हो ये जाती है। इनएफिशिएंसी कहीं डिस्कस नहीं की, क्यों? मैम मैं तो अपने प्रोजेक्ट को फेवर के लिए इस चीजों के स्टैंड लूंगा ना, और ये है कि अगर हम आपको अपने स्लाइड्स प्रोजेक्ट की के बात करें स्लाइड की बात करें तो एक स्लाइड में इसकी इनएफिशिएंसी के बारे में बताया है कि ना, जो स्लाइड्स आपने स्किप करवाई हैं उसमें से मेरे ख्याल है 5th या 6th स्लाइड है जिसके अंदर बताया है कि इसकी इनएफिशिएंसी स्लाइड, है मैं या तो इन आपसे ये चीजों। कह रही हूँ कि अगर अब आप लार्ज अमाउंट प्रोडक्शन की बात करेंगे तो फिर तो ये बहुत मेजर ड्रॉबैक नहीं हो जाएगा? इट विल रिजल्ट इन एक्सेसिव अमाउंट ऑफ हीट। मैम उसके लिए हाउ हम विल यू कोप हीट दिस अप? सिंक्स की हीट सिंक यूज कर रहे हैं तो उनका साइज भी बढ़ा देंगे, और दूसरा जो फैन हम यूज कर रहे हैं हीट को बाहर और निकालने फिर के और लिए, यानी हीट जिस तरह सिंक्स, से। ओके ओके ओके, माय पॉइंट इज हीट सिंक्स का साइज बढ़ाने से अल्टीमेटली क्या होगा? आपकी जो प्रोडक्ट है इट विल आल्सो गेट ह्यूज इन मैसेज। हीट मैम सिंक्स ये का उसका कूल होना साइज शुरू भी हो बढ़ा जाएगा दें। ना।
मतलब कूल इफेक्ट के लिए यूज करते हैं ना, कि हीट इतनी ज्यादा ना ड्रॉ हो कि वो चीज जल जाए। अच्छा चलिए, अब एक और ड्रॉबैक की तरफ आते हैं। हम मैम पेल्टियर्स को एसी में क्यों यूज नहीं करते? आप मुझे सुन सकते हैं? मैम ये सेमीकंडक्टर डिवाइस है ना, हम इसको डीसी में यूज करेंगे, हमें कांस्टेंट करंट चाहिए होता है, तो एसी के अंदर तो अल्टरनेटिंग आ रहा होता है, हम एज वो तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस चलिए यूज हम कर रहे हैं। इन्वर्टर तो बेस्ड एसीज में यूज कर लेते हैं। मैम वो कॉस्ट इफेक्टिव हो जाएगा, उसमें कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी, इन्वर्टर्स बेटा वगैरह ये लगाएंगे तो मसला cost- नहीं है, देयर इज समथिंग एल्स, द प्रॉब्लम इज डिफरेंट। प्रॉब्लम ये है कि ये बिलो लो टेम्परेचर पे, बिलो 10 डिग्री सेंटीग्रेड एफिशिएंट, वेरी एफिशिएंट नहीं होता है एज कम्पेयर टू कंप्रेसर बेस्ड सिस्टम्स। सिमिलरली सही बोलिए आप, 50% से कम जो ह्यूमिडिटी होती है उसको भी स्मॉल एफिशिएंट यानी होगा, अब मैं ये ये कह सारे सकती हूँ कि लिमिटेशन। जो मैं ये कह सकती हूँ कि जो स्मॉल टेम्परेचर ग्रेडियंट है वहां पर आप इसको यूज नहीं कर सकते। मैम हर चीज के ड्रॉबैक तो होते हैं, उसको हम निगलेक्ट, तो जाहिर है हर चीज को अगर देखना शुरू कर देंगे तो इस मैं तो तरह ये की। जानना चाहती हूँ कि क्योंकि आप फ्यूचर वर्क में ये कह रहे हैं कि इसकी जो मास प्रोडक्टिविटी, हम इससे ट्रिलियंस ऑफ टन्स ऑफ वाटर कैन बी एक्सट्रैक्टेड, सो ऑब्वियसली वी नीड अ मेजर लार्ज प्रोडक्शन फॉर दिस, ऐसा ही है ना? हमें लार्जर सेटअप चाहिए लार्जर एप्लीकेशंस के लिए, तो लार्जर एप्लीकेशंस में ये ड्रॉबैक्स तो सिवियर होंगे। तो मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ, हाउ विल यू कोप अप विद दीज ड्रॉबैक्स? Exactly, you are doing right, but research is going on it. We can see that still ओके ओके, सो यू I आर have स्टिल followed many research रिसर्चिंग ओवर इट। papers. Or researchers are also doing researches on it. I have followed many research papers अच्छा अब that जरा मुझे ये comes बताइएगा, every day. ठीक है, इट्स ओके, यू कैरी ऑन विद योर रिसर्च राइट नाउ, आपने इस पे रिसर्च कर रहे हैं, आई अंडरस्टैंड दैट। अब मुझे ये बताइएगा, इन अ कूलिंग कंडेंसेशन टाइप जो एटमॉस्फेरिक वाटर जनरेटर होता है जिस तरह का आपका है, इसकी वर्किंग क्या होती है? Sorry, ma'am, I could not hear. आप मुझे इसकी सिंपलीफाइड ब्लॉक डायग्राम खोलेंगे, ब्लॉक डायग्राम दिखाएंगे मुझे आप, जहाँ ब्लॉक डायग्राम वाली स्लाइड है? Did I show it before? जी This one? जी जी बिल्कुल, यही कंडेंसेशन कहाँ हो रही है यहाँ पे? Condensation is going on the polar side where we are maintaining the dew point कंडेंसेशन at the pole side. फोर्थ ब्लॉक में हो रही है, ये कह रहे हैं आप? Yes. कोल्ड साइड By पे maintaining कंडेंसेशन हो रही है? yes, सही। by maintaining the temperature. Okay, so can you please explain this phenomena of condensation to me? Condensation. मैम एक्चुअली होता ये है कि जैसे हीट ऑफ द रेफ्रिजरेंट्स होती है ना, ये रिसीव होती है बाय एयर अराउंड द एक्सचेंजर, यानी कंडेंसर्स जो होते हैं ना, उनके अंदर वाटर ड्रॉपलेट्स छोटे 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 फॉर्म होते रहते हैं, ठीक है। फिर होता ये है कि ये इसकी स्टेट को चेंज करते हैं गैस टू लिक्विड में, क्योंकि प्रेशर इतना हाउ ज्यादा कम, होता है कैसे, यही मैं जानना चाहती हूँ, कैसे करते हैं? टेम्परेचर इतना ड्रॉप हो जाता है कि वो वहां पे सप्रेस हो जाता है, यानी प्रेशर और टेम्परेचर इतना ड्रॉप हो जाता है कि जो एयर टेम्परेचर है ना इतना ज्यादा चले जाता है ड्यू पॉइंट से नीचे, कि वो एक्सेसिव ह्यूमिडिटी जितनी भी जो है ना वो उसकी वॉल पे कंडेंस होना शुरू हो जाती है। तो कंडेंसेशन मैकेनिज्म करता क्या है, मैं तो ये पूछ रही हूँ आपसे। मैम कंडेंसेशन मैकेनिज्म में होता ये है कि जो एयर में ड्रॉपलेट्स होते हैं वो ठीक वाटर है, वेपर की फॉर्म में उसकी प्लेट्स के ऊपर या जिस जगह पे कंडेंसेशन हो रही होती है वहां आना शुरू हो जाता है नमी के तौर पे। सही है, तो फिर ये कंडेंसेशन से आना शुरू हो जाते हैं? जी मैम, यानी कंप्रेसर जब कूलिंग इफेक्ट के साथ काम कर रहा होता है तो उसके बाद उसका जो ड्यू पॉइंट है एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के हिसाब से वो जब बिलो बेटा चले नहीं, जाते हैं, आपको ऐसा यानी नहीं लगता कि कंडेंसेशन में बेसिकली जो हवा में वाटर वेपर्स होते हैं वो उसे लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, यानी जो वेपर्स और गैसेस हैं उन्हें लिक्विड में कन्वर्ट करता है रादर देन जनरेटिंग दीज गैसेस एंड वेपर? मेरी तो जी मैम नॉलेज ये, ऐसे इफ ही आई एम होता है, मिसिंग समथिंग। कंडेंसेशन का इफेक्ट यही कहता है कि जो वाटर वेपर्स आपके इर्द गिर्द मौजूद हैं उनको कंडेंस कर दिया जाए, यानी एयर जो है वो डायरेक्टली फॉर्म ऑफ वाटर में कन्वर्ट हो जाए। हाँ तो ये हुआ ना कंडेंसेशन, वो वेपर्स तो जनरेट नहीं करता है, वो वेपर्स को वाटर में कन्वर्ट कर देता है। जी मैम। सही है। ओके, कुछ एग्जांपल्स देंगे कंडेंसेशन की? मैम एक तो एग्जांपल जो हम सबसे ज्यादा बेसिक और कॉमन देखते हैं ना, फॉर एग्जांपल अगर आप कुकिंग कर रहे होते हैं तो आप जब कुक करने के बाद उसको पतीली कह लें या कढ़ाई कह लें जिसके ऊपर आप पॉट ढक्कन रख पॉट देते हैं, बेसिकली पॉट, हाँ ओके। ठीक है, उसको जब आप उठाते हैं ना दोबारा, उसके अंदर हीट उसको उठाएं तो उसकी सरफेस पे ना यानी जो ढक्कन हम उठाते हैं उसकी सरफेस पे वाटर हमें नजर आ रहा होता है,
तो वो इस वजह से होता है कि आप उसको कूल एयर को बंद कर देते हैं, उसके अंदर ढक्कन आपने लगा दिया हुआ है, तो उसके अंदर वो कंडेंस होना यानी शुरू होता है, जब बेसिकली आप उठाते हैं तो फॉर्म ऑफ, स्वेटिंग को हम कह सकते हैं एज एग्जांपल ऑफ कंडेंसेशन। यस मैम। सही है, अब यही स्वेटिंग वाला फिनोमेना ही है ना जो आप पॉट वाली एग्जांपल जी बता रहे हैं, मैम। उसमें भी जी मैम। सही है। सो वी कैन सिंपली से दैट स्वेटिंग इज अ फॉर्म ऑफ कंडेंसेशन। जी सही। मैम। अब मुझे ये बताइएगा, व्हाट हैव यू डन सो फार, आपने अब तक क्या कर लिया है इस प्रोजेक्ट में? शो मी योर वर्किंग। बेसिकली तो ये हमारा सारा एफिशिएंट है, तो रिसर्च वर्क ही काम है। और दूसरा मैंने आपको बताया था शुरू के अंदर के पल्टियर डिवाइस सॉरी जो है, मैं समझी नहीं, आपने क्या कहा था अभी, मैं सुन नहीं सकी। जी एफिशिएंट है ना, हमारा एफिशिएंट बेस्ड है, तो यूजुअली हमारा वर्क जो था हाँ, सारा। why are you calling it efficient? A very important question. Why are you calling it efficient? मैम बिकॉज वी वांटेड टू मेक इट एफिशिएंट, बिकॉज ये पहले भी How बन चुका come है it is प्रोजेक्ट। efficient? मैम Please यही तो justify मैं your आपको claim. मैम हम लोग रिसर्च, हमारा काम ही असल में सारा भी एफिशिएंट बनाने के लिए रिसर्च बेस ही है, तो पल्टियर जितना ज्यादा एफिशिएंट जितना ज्यादा एफिशिएंट होगा उसी लिहाज से हम लोग करेंगे, और इसकी पावर कंजम्पशन वगैरह को देखते हुए एंड में फाइनल प्रोडक्ट जो होगी वो यकीनन अच्छी और एफिशिएंट ही बनाएंगे, जो पहले जितनी बनी होगी इंशाल्लाह उससे ज्यादा अच्छी एफिशिएंसी होगी इसकी। सारा वर्किंग जो होगी, हमारी मेन बनाएंगे, देखेंगे, करेंगे, ऐसा है? मैम रिसर्च बेस है हमारा, क्योंकि पल्टियर डिवाइस जो है हमने असल में इंपोर्ट करना था, जो हमें बाहर से इंपोर्ट करना था वो एफिशिएंट था ज्यादा। यहाँ जो मिल रहे हैं ना पाकिस्तान वगैरह में और एशिया साइड पे जो मिल रहे थे वो सारे जो है इनएफिशिएंट थे, मेजर उनकी जो इनएफिशिएंट ड्रॉबैक और का वजह से। एफिशिएंट को जरा कैटेगराइज कीजिएगा, ये क्यों इनएफिशिएंट थे, वो क्यों एफिशिएंट है? मैम उसका मटेरियल जो है वो ज़्यादा अच्छा नहीं हुआ था, सेमीकंडक्टर डिवाइस जैसे हमें पता है कि उनकी एफिशिएंसी अलग अलग होती है, तो जो जी, प्रोडक्ट वो लोग दे रहे होते हैं कंपनी अपने लिहाज से दे रही होती है, जो अच्छा, बाहर से सही। एक अमेजोन लास्ट वगैरह चीज, अब मैंने यहाँ पे कन्वर्टर देखा था कहीं, बक कन्वर्टर, आपने कहीं पे उसकी आईसी शो की थी। अब यस आप यस जरा कन्वर्टर पे आ जाएं। बक कन्वर्टर एक्चुअली यूज फॉर टू कन्वर्ट 12 वोल्ट इनटू 5 वोल्ट, क्योंकि हमारी आईसीज वगैरह जो है वो 5 वोल्ट्स पे चल रही है ना, इसी तरह आर्डिनो को मैं Why do 5 you वोल्ट need पे a चाहिए। power converter for this? मैम क्योंकि बाकी जो है पल्टियर भी जो है हाई पावर लेता है, और बाकी जो ठीक है, पूरा मेरा सर्किट है वो सवाल तो पावर। ये है, मेरा तो सवाल ये है कि वाई अ पावर कन्वर्टर? हम लोग एक तो इसकी जगह हम लोग 5 वोल्ट रेगुलेटर आईसी भी यूज कर सकते हैं, लेकिन उसके अपने ड्रॉबैक थे, वो एग्जैक्टली वोल्टेज नहीं थे। फिर पावर कन्वर्टर और बक कन्वर्टर यूज करने का मकसद ये था हमारा कि जो है वोल्टेज जो है अगर कहीं कम ज्यादा हो तो एग्जैक्टली क्लोज देता है, इससे हम जो है ड्यूटी साइकिल के जरिए जो है ऊपर नीचे कर सकते हैं वोल्टेज लेकिन देखें, अकॉर्डिंग फिर टू अवर पावर नीड। कंजप्शन भी तो इन्वॉल्व है ना इसके अंदर। फीजिबिलिटी अगर आप अपने प्रोजेक्ट की देखें तो एक वोल्टेज रेगुलेटर और एक बक कन्वर्टर, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू, इज दैट और नॉट? देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस, आई और एक्सेप्ट आप दैट। मुझे ये बताइएगा, योर सिस्टम इज अ लीनियर सिस्टम और अ नॉन लीनियर सिस्टम? एंड लीनियर है। लीनियर है। यस मैम अकॉर्डिंग टू मेरा तो जहां तक ख्याल है, ह्यूमिडिटी एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर में जो चेंज है वो लीनियर नहीं होता। मैम लीनियर नहीं होता, हमने तो लीनियर का ही जो आपका पल्टियर डिवाइस यूज करा होता है टेम्परेचर के साथ लीनियरली उसका कोई रिलेशन होता है वो जिसके जरिए। टेम्परेचर के साथ लीनियरली रिलेटेड है ना, मैं तो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर में जो चेंज है वो थोड़ी लीनियर होता है, क्या होता है? मैं पल्टियर की बात कर रहा हूँ। हाँ, तो मैं आपसे ये कह रही हूँ कि ये जो चेंज है, दिस चेंज इज नॉट लीनियर, यस ऐसा एग्जैक्टली है या नहीं? एग्जैक्टली। चलें, सही है, थैंक यू। बिलाल, अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है सर सजा, तो आप लोग पूछ सकते हैं प्लीज। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। सॉरी बिलाल, एक सेकंड, ये कफील तुमने बार बार एक वर्ड यूज कर रहे थे, स्कार्स। स्कार्स कोई वर्ड नहीं होता, इट इज स्केर्स। स्केर्स का मतलब ये है कि जो हमारे पास वाटर रिसोर्सेज हैं वो उनकी किल्लत है, तो स्कार्सिटी एग्जैक्टली यस एग्जैक्टली। तो ये है तो बहुत बज़ाहिर बहुत छोटी सी बात, लेकिन ये इम्पोर्टेंट इस हवाले से होती है कि जब आप किसी एक्सटर्नल के सामने इस तरह की बात करते हैं तो इसका मतलब ये कि वो इनडायरेक्टली हम पर बात आती है कि हमने ये बात सिखाई नहीं है तुम लोगों को, तो ये इसका बड़ा ख्याल करना होता है। फिर दूसरी बात ये कि जब आप प्रेजेंटेशंस वगैरह बनाते हैं तो उसमें हमेशा एक चीज़ का ख्याल रखें कि जो चीज़ आपको, जिसके बारे में आपको ज़रा बराबर भी शक है या जिसको आप जस्टिफाई नहीं कर सकते, उसको रखने की ज़रूरत ही नहीं है। उसको
until and unless कि उसकी importance हो, और तो अब जब importance है तो इसका मतलब ये है कि you should have a background information about that particular slide, उसकी पूरी in and out आपको पता होना चाहिए. अभी जैसे मैम आपसे पूछ रही थी तो you were unable to justify. Justification is very important, और वो हम नॉर्मली इसको हम इग्नोर करते हैं. इसके अलावा आपके जो थर्ड पार्टनर हैं, क्या नाम उनका, असद और कफील के अलावा क्या नाम है? हमजा आशिक. हमजा आशिक, यस. तो वो तो मतलब ऐसा लग रहा था कि वो मेहमान अदाकार के तौर पर आए और दो बातें करके और उसके बाद बिल्कुल खामोश हैं थ्रू आउट. दैट इज आल्सो नॉट very much something very to be appreciated. आपने हर एक ने equally participate करना होता है in order to show that you have worked as a team in the entire process. लेकिन वो चीज नजर नहीं आ रही है. अच्छा, फिर आपकी जैसे मैम ने अभी आपसे जब पूछा लीनियर और नॉन लीनियर का जो कॉन्सेप्ट पूछा था, तो उसमें भी यू आर नॉट क्लियर अबाउट इट. तो आपकी फिर रिसर्च जो है वो तो फिर बैक बर्नर पे चली गई. कि इसका मतलब ये है कि यू हैव नॉट डन योर बैकग्राउंड वर्क थॉरोली. एक सवाल फिर ये आता है कि अगर मैं सपोज करें जो आपका जो कंट्रोल मैकेनिज्म आपने दिया है, तो उसको अगर मैं सपोज करें कि ओपन लूप सिस्टम रखूं, तो व्हाट इज योर टेक ऑन इट? दैट वुड यू एग्री दैट वी कैन use an open loop system for this whole project? No सर, हम ओपन लूप नहीं रख सकते इसको, क्योंकि हमें कोल्ड साइड का टेम्परेचर जो है वहाँ से ड्यू पॉइंट जो है हमें पहले निकालना है और उसको जो है हमने मेंटेन रखना है. अगर हम इसको ओपन लूप रख देंगे तो फिर हम लोग जो है उसको कंट्रोल नहीं करा पाएंगे. उसके लिए जो है क्लोज लूप जो है बहुत ज्यादा जरूरी है. नहीं तो कंट्रोल क्यों करवाना है? वही तो सवाल है कि कंट्रोल सर क्यों करवाना है? सर फीडबैक चाहिए होता है हमें कि अभी हमारा जो है आउटपुट क्या चल रहा है, उसको जो हम प्रोसेस कराएंगे तो यकीनन हमें फीडबैक के थ्रू जो है उसको क्लोज लूप लेना पड़ेगा. सर एक मेजर रीजन ये भी है कि जो ओपन लूप सिस्टम होता है. जी बोले. कैन यू हियर मी? हाँ जी आ रही है आवाज. सर इसको एक तो हम ये रेफर करते हैं कि नॉन फीडबैक सिस्टम होते हैं, ठीक है. तो उसमें ये है कि कंटिन्यूअस कंट्रोल सिस्टम हम नहीं बना पाते, यानी उसके ऊपर कोई भी आउटपुट का इन्फ्लुएंस और इफेक्ट नहीं होता कि किस एक्शन को कंट्रोल कर रही है, किस तरह से काम कर रही है. तो ये है कि हमारे सिस्टम में हमें आउटपुट से भी कंट्रोल करना है, तो आउटपुट से जो चीजें यानी जो डेटा देते हैं वो फिर हम इनपुट पे देते हैं. तो ये ओपन लूप सिस्टम नहीं हो सकता है, क्लोज लूप सिस्टम पे ही काम करेगा. और दूसरा सर, थैंक्स अ लॉट फॉर इम्प्रूविंग अस. इसी से ऊपर है ना ये स्लाइड, ये जरा इसको जरा शो करें जी. आप इसमें बताएं कि किस चीज को आप कंट्रोल कर रहे हैं. सर इसमें कोल्ड साइड का टेम्परेचर है ना, कोल्ड साइड का टेम्परेचर मैंने आपको पहले ही बताया कि ड्यू पॉइंट जो हम लोग एक बार निकाल लेंगे, इसका फाइंड करेंगे, उसको मेंटेन करने के लिए जो है हमें क्लोज लूप करना लाजमी है. जो ड्यू पॉइंट ही मेन चीज है. लो ड्यू पॉइंट जब हम क्रिएट करते हैं टेम्परेचर, उसके बाद ही जो है वाटर कंडेंस होना शुरू होता है, जिसको हम एयर से ले रहे होते हैं. मतलब एयर को कंडेंस करते हैं तो एज अ लिक्विड को हम लोग उसको ड्रॉपलेट की फॉर्म में जो है ड्रॉप फॉर्म में जो है वाटर के टैंक में जो है कंजर्व कर रहे हैं. तो बगैर इसके तो ये पॉसिबल नहीं है कि अगर फॉर एग्जांपल हमने ड्यू पॉइंट एक बार तो सेट कर लिया, लेकिन अगर वो किसी कंडीशन की वजह से ऊपर नीचे हो जाता है तो फिर वो एफिशिएंसी उसकी जो है खराब होगी, क्योंकि हमें पता ही नहीं होगा कि वो ड्यू पॉइंट नहीं. अगर फॉर एग्जांपल ड्यू पॉइंट 25 है और हमने शुरू में 25 को उसका मेंटेन कर दिया, लेकिन हमने क्लोज लूप नहीं करा, अब हमें नेक्स्ट ये नहीं पता होगा कि हो सकता है 27 हो जाए आगे जाके, जो है हॉट साइड की वजह से, किसी और एक्सटर्नल इफेक्ट की वजह से अगर वो चेंज हो जाता है तो हमें तो नहीं पता लगेगा ना. हमने कंट्रोलर अगर लगाया तो फिर इससे होगा क्या, इससे तो जी एरर हम लोग जो है ये जो तुमने बात कही ना कि एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक चेंज जो है उसकी वजह से, तो इसीलिए तो ये नॉन लीनियर सिस्टम है जो मैम ने बताया आपको. यू हैव टू हैव मतलब आप जब हम उस चीज को एलाबोरेट कर रहे हैं तो ओनली यू आर एग्रीइंग अपॉन इट. ये एग्रीइंग नहीं होनी चाहिए थी एक्चुअली. तो तुम्हें इसमें अगर तुम इसको लीनियर कह रहे थे तो उसके लिए तुम्हारे पास सॉलिड आर्गुमेंट होना चाहिए, और अगर तुम नॉन लीनियर कह रहे हो तो उसके लिए सॉलिड आर्गुमेंट होना बहुत जरूरी है. सर एक्चुअली आई misunderstood. I thought ma'am are talking about the Peltier device. That Peltier device is linear. I did not know that ma'am are talking about this part, so that I told about the Peltier device. It was my mistake, or you can say that misinterpretation. This is okay. मतलब हम इस वक्त जो हम तुमसे ये सारी बातें जो बता रहे हैं, इसके इंटेंट ये किसी भी हवाले से अंडरमाइन नहीं करना है तुम्हारी एफर्ट को. वी आर जस्ट ट्राइंग टू नहीं, हम सिर्फ ये चाह रहे हैं कि जब आप अपनी
कोई भी चीज लेकर जाते हैं, कल को आप यही चीज सपोज करें कि मार्केट में लेकर जाते हैं, तो आप अपने कस्टमर को किस तरह से कन्विंस करेंगे कि वॉट एवर यू आर कमिंग अप विद हैज गॉट एडवांटेज ओवर, मोर एडवांटेज देन द डिसएडवांटेज। तो आपको एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों पता होने चाहिए, जब ही आप मतलब उसको सही तरह से मार्केट कर सकते हैं। सो दिस इज तो सो इस हवाले से यू हैव टू हैव a very thorough understanding of the justification for with which you are coming up with. ये this is very important, इस चीज को थोड़ा सा ख्याल करें। And Hamza Ashik, you have been very silent all through. I don't know why, but this is not something very good. सर एक्चुअली हमजा आशिक जो हैदराबाद में तो नेट वगैरह का इशू होता है, उसको पता ही नहीं लगता कि बात कहाँ जा रही है। अभी कराची वगैरह में नहीं है ना, हैदराबाद की साइड पे इंटरनेट के इशू बहुत है, तो उसको अक्सर तो बीच में से हो सकता है कि पता ही नहीं लगा कि हम लोग किधर है, तो उसको पता ही नहीं लगता, तो इस वजह से वो जवाब नहीं दे पाता हुआ। तो ये एक उसका बड़ा ड्रॉबैक है हैदराबाद में, पहाड़ों की साइड पे तो सिग्नल्स का बहुत इफेक्ट होता है, उसने पहले भी हमें बताया था। तो ये मसला है असल। चलें, दिस इज इट फ्रॉम माय साइड। जी बिलाल, आप। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर पॉइंटिंग। जी मैं बस उनको यही कहना चाहूँगा कि आपका, क्योंकि आखिरी सेमेस्टर है, 8वां सेमेस्टर, और ये इसमें टाइम इतना है नहीं आपके पास ना, क्योंकि दिसंबर तक सब चीज़ें जो हैं वो एक्सक्यूज मी वाइंड अप करनी होंगी, तो इसको प्लीज़ थोड़ा सा इसका जो पेस थोड़ा फास्ट करो। मतलब ठीक है कि आपका काम हो रहा है, सही जा रहा है, और नॉलेज भी आपको ये कि चीज़ों की है, बट ये कि चीज़ों को थोड़ा जो है ना फास्ट करो, और ये कि सबको लेके चलो एक साथ। ये इसी से जो है ना फिर आप एक फाइनल प्रोडक्ट आपके सामने आ सकेगी। प्रोजेक्ट आपका अच्छा है, श्योर सर, इंशाल्लाह। ये कि इसमें आपको चीज़ें भी काफ़ी हद तक जो है वो मालूम है, तो बस इसको ये कि थोड़ा उसको पेस सही रखना। बाकी सवाल जवाब तो मेरा ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि सवाल में मैंने काफ़ी कर लिए हैं, तो उसमें ही मेरे काफ़ी सवाल जो है वो कवर हो चुके हैं। तो आई थिंक ठीक है सर, इतना काफ़ी है आज के लिए। ठीक है सर सज्जाद, फिर हम इसको एंड करते हैं। जी बिल्कुल। ओके सर, थैंक्स अ लॉट। वी विल इंशाल्लाह ट्राई टू इम्प्रूव आवरसेल्फ रिगार्डिंग द थिंग्स जो कि सर सज्जाद ने पॉइंट आउट की या मैम ने जो क्वेश्चनरीज। सही, ठीक है, ठीक, गुड, ठीक है, चले, ओके, अल्लाह हाफिज़। ओके सर, अल्लाह हाफिज।